إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله محترم معزز، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، الحمدللہ۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم معزز، آج کا موضوع ہے دیننا السمح، ہمارا دین رواداری ہے، یعنی بہت آسان دین ہے۔ اب عید کی چھٹی چل رہی ہے، دو دن قبل ہم سے ایک مبارک مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند ہی دن جو ہے رمضان کے مہینے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اب دیکھیں کتنی تیزی سے گزر گیا۔ جو روزہ دار روزہ رکھیں تھے ان کے لیے بھی جلدی سے گزر گیا، جو نہیں روزہ رکھیں ان کے لیے بھی گزر گیا۔ رمضان کا مہینہ کسی کے لیے رکا نہیں ہے، بہت تیزی سے چلا گیا۔ اس مہینہ میں جو عقل مند لوگ، مومن لوگ پورے مہینہ کا پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں اور عبادت کیے، قیام کیے، تراویح کی نماز ادا کیے، نفسانی خواہشات کا کنٹرول کیے، وہی عقل مند لوگ ہیں جو اس جیسے اعمال کو ایک ہدیہ کے طور پر، ایک تحفہ کے طور پر ایک غنیمت سمجھا اور پورے مہینہ کا روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزہ دار کے روزے کو قبول کریں، آمین۔ اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اس مبارک اور پاک مہینہ ملنے کے باوجود، اس جیسا عظیم مہینے ملنے کے باوجود، صحت و تندرست رہنے کے باوجود جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ آنے والے رمضان میں انہیں توفیق دے روزہ رکھنے کی، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مبارک مہینہ رمضان کے پورے مہینہ روزہ رکھا ہے اور پھر شوال کے 6 روزہ رکھتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جو شخص رمضان کے پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں پھر رمضان کے بعد شوال عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن یا شوال کے پورے مہینہ میں چھوڑ کے ہوں یا لگاتار ہوں، ایک مہینے کے اندر 6 روزہ رکھتا ہے، کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ ایک زمانہ کا روزہ رکھا۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے کے بعد یہ 6 روزہ رکھتے ہیں تو ان کو 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب ملے گا۔ اور کانا کصیام الدہر، ایک زمانہ سے مراد کہ جو شخص یہ عمل مسلسل کرتا ہے،
यानी इस साल भी रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर शव्वाल का रोज़ा रखा, फिर अगले साल भी इसी तरह वो ज़िंदगी भर रखते रहता है, तो गोया वो ज़िंदगी भर रोज़ा रखा, और इस तरह से उनका नाम ज़िंदगी भर रोज़ा रखने वालों में शुमार किया जाता है और उनका नाम लिख दिया जाता है साइम में। तो ये बहुत सवाब का काम है कि रमज़ान के रोज़ा रखें, उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखें, तो बहुत सवाब का काम है। जिंदगी भर खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन फिर भी क्या सवाब मिलेगा? रोज़ा का सवाब मिलेगा। तो मुमिनों के लिए फ़ायदा है, जो अक्लमंद हैं और जो नेकी की चाहत है, जिन्हें दिलचस्पी है ज़्यादा नेकी कमाने की, वो ऐसा करते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस महीने शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रखते हैं। रोज़ेदार हैं, रमज़ान के रोज़े रखे, लेकिन शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रखते हैं। उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर इस आगे और आने वाले साल, अगर आने वाले साल हमें मिले या ना मिले, रमज़ान का महीना किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर हम इस साल के अंदर अगर हमारी वफ़ात हो जाती है तो हम रोज़ेदार में शुमार किए जाएंगे, और अगर हम वफ़ात पा जाते हैं तो हमको रोज़े की हालत में हमारी वफ़ात होगी। अगर दिन में वफ़ात होती है तो हमारा नाम साइम में लिख दिया जाएगा, यानी हमेशा रोज़ा रखने वाला। तो इसलिए रमज़ान के रोज़े जो रखे हैं उन्हें चाहिए कि और 6 रोज़ा रख लें, कोशिश करके एक दिन छोड़ के रखें, या फिर जुमा को रखें, जब छुट्टी मिलती है उस वक्त रखें। इस तरह से 1 महीने के अंदर ये रोज़ा रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दीन बहुत आसान है अगर लोग माने समझे तो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। वो लोग कहते हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, जिस तरह से अल्लाह ने हमें हिदायत दिया। दूसरी जगह फरमाते हैं वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा। उनसे कहा जाता है कि तुम मुत्तक़ियों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या नाजिल किया। माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारा रब ने तुम्हारे लिए क्या नाजिल किया। उन लोग कहते हैं क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए भलाई नाजिल किया, यानी भलाई दिया। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जो लोग इस दुनिया में भलाई करते हैं उनके लिए वो इसी दुनिया में भलाई है। वलदारुल आखिरत खैर, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है, खैर की ज़िंदगी है। वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन, यानी अगर आप भलाई का काम करेंगे दुनियावी ज़िंदगी के लिए तो इसी दुनिया में सवाब मिलेगा, लेकिन नियत सही रखते हुए आखिरत सोच कर करेंगे तो इस दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। जो लोग ईमान रखते हुए भलाई का काम करते हैं उनको इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा। जो नॉन मुस्लिम लोग भलाई करते हैं, जो गैर मुस्लिम भलाई करते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, वो अगर किसी पर नेकी करे, किसी को दान करे, या फिर किसी का हेल्प करे, या फिर कोई और तरीके से किसी का भलाई करने सोचे, तो उसको इस भलाई का फल इसी दुनिया में दे देगा, और क़यामत के दिन उसके हिसाब में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पहला ईमान है। ईमान के बाद अगर आप सदका करेंगे, नेकी करेंगे, किसी का हेल्प करेंगे, या फिर कोई और चीज़ मदद करेंगे, तो आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और क़यामत के दिन भी मिलेगा। लेकिन ईमान सही नहीं है तो आपको सिर्फ इस दुनिया में मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं है, क्योंकि आप दुनिया कमाने के लिए आप भलाई किए, नेकी किए, जो भी काम किए दुनिया कमाने के लिए, तो आपको दुनिया ही में मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। ईद का छुट्टी चल रहा है। ईद की छुट्टी में बहुत सारे भाई आप देखेंगे कि शव्वाल के जो पहले तारीख को ईद, दूसरी तारीख से रोज़ा रखते हैं, कुछ भाई रखते हैं। ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि आपके 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन में 3 रोज़ा हो जाएगा। और फिर अगर आपको जुमा 4 मिलेगा या 3 मिले, आज जुमा है, इसके बाद हो सकता है 3 जुमा, तो 3 जुमा में 3 रोज़ा रखेंगे, और इधर 3 दिन छुट्टी में 3 दिन 3 रोज़ा, तो 6 रोज़ा हो जाएगा। इस तरह से 6 रोज़ा हो जाएगा तो आपको साल भर नेकी का सवाब मिलेगा। लेकिन बहुत सारे भाई तौफीक रहते हुए भी नहीं रखें,
तौफीक बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह हर एक पर रहम नहीं करता है, अल्लाह हर एक को तौफीक नहीं देता है। रूम में बैठे हैं, देखिए बहुत सारे भाई, आप देखेंगे रमज़ान के महीना में ड्यूटी भी नहीं है फिर भी रोज़ा नहीं है। बहुत सारे भाई ड्यूटी है लेकिन रोज़ा है, ड्यूटी है फिर भी रोज़ा है। साथ में ड्यूटी करने वाले, सही तंदुरुस्त रहने वाले, आप देखेंगे साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, एक के साथ जाते हैं 6 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा, लेकिन एक कुछ भाई रोज़ा रखते हैं, कुछ भाई नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी मुसलमान हैं। इसका मतलब तौफीक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह हर एक को गनीमत नहीं देता है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक पर ख़ास रहम नहीं करता है। जो शख्स रोज़ा नहीं रखते हैं या फिर जो शख्स सलात अदा नहीं करते हैं, वो ये ना सोचे कि हम रोज़ा नहीं रखते हैं या फिर हम सलात अदा नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा है, अल्लाह आपको ये तौफीक नहीं दे रहा है कि 5 वक्त सलात अजान के बाद आप अल्लाह के सामने सर झुकाएं। अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा है। अल्लाह